Hello and welcome back, students. Today we start with mathematical logic part 2. In the previous video, we have done rules of inference and the rules such as simplification and modest ponens and modest tolerance. Such rules were discussed. I hope you have been practicing the exercises and hopefully you do not have any doubts up till now, because none of the doubts have come to me. But you are always open and free to ask me. Now, today's topic is very important again because it is all about quantifiers. Open statements, quantifiers. So, in mathematical statements, when we say declarative sentences such as those given below, now these statements are called declarative. They are declaring something, such as x plus 3 is 6, x square is less than 10, x divides 4, x is root 2. Now, these sentences are not propositions unless the simple x is specified. You cannot say this statement is either true or false unless until we come to know the value of x. Suppose x is 6. In the first example, x is 6. 6 plus 3 is 9. So this question will go wrong if I take x value as 6. But if I take x value as 3, then 3 plus 3 is 6, which is absolutely true. Sentences of this kind are called open sentences, and open sentences or statements and the unspecified symbol such as x in the sentence is called as the free variable. तो इन तरीके के sentences जहाँ पे x की वैल्यू हमें अभी पता ही नहीं है, और जब x की वैल्यू हमें पता चलेगी तब हम डिसाइड करेंगे कि ये एक प्रपोजिशन है या नहीं है. तो ऐसे टाइप के वेरिएबल्स जो x है इन्हें फ्री वेरिएबल्स कहा जाता है, और ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स को ओपन स्टेटमेंट्स कहा जाता है. अब जैसे कि कंसिडर द सेंटेंस 1 above and the set of real numbers are. This sentence becomes a proposition if x is replaced by any element of R. For example, if x is replaced by 3, the sentence become a true proposition. And if x is replaced by 5 or 6 or any other number, it becomes a false proposition. Here we say R is a universe of discourse. Because R में से हम नंबर उठा रहे हैं, इसीलिए R बन गया universe of discourse for the variable x in the sentence 1. Similarly, R is a universe for x in sentence 2, 3 and 4 also. तो R में से R is a set of real numbers, और उन्हीं में से numbers लेकर हम इनकी values को satisfy करेंगे, इसलिए R बना universe of discourse. The set of all integers capital Z is also a universe for x in all 4 sentences. तो जो आपका इंटीजर्स है, इंटीजर्स का सेट है, यू कैन से z इज ऑल्सो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बिकॉज इंटीजर्स ही है जो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं. ठीक है. ओपन स्टेटमेंट्स कंटेनिंग अ वेरिएबल x आर डिनोटेड बाय. अब जब ओपन स्टेटमेंट्स लिखते हो तो उनको ऐसे लिखना होगा कि p इन ब्रैकेट x राउंड ब्रैकेट, q इन राउंड ब्रैकेट x etc. If capital U is the universe for the variable x in an open statement p of x, and if a belongs to U, then the preposition got by replacing x by a in p of x is denoted by p of a. This line is very very important, so I repeat it. उन्होंने कहा कि ओपन स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको बताया जिनकी वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, वो क्लियरली डिपेंड करेगी कि x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं उस पर. ठीक है. अब ओपन स्टेटमेंट्स जो x से डिनोट होते हैं उनको आप लिखेंगे इस पैटर्न में कि p ऑफ x या q ऑफ x, इस पैटर्न में. ठीक है. अब मैंने आपको बताया कि जिस सेट में से आप आंसर ले रहे हो उसे यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स करते हैं, कहते हैं. अब कैपिटल यू अगर यूनिवर्स है एक्स वेरिएबल का इस ओपन स्टेटमेंट p ऑफ x में, अब उस सेट में एक और एक वेरिएबल है से स्मॉल a, उसी सेट u में x था तभी तो वो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बना. अब उसी सेट में एक स्मॉल a भी है जो उसी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को बिलोंग करता है. तो ये कहना चाहते हैं कि सेम प्रपोजिशन हमें तब भी मिलेगा, भले वो फॉल्स मिलेगा या ट्रू मिलेगा, डिपेंड्स, वो तो अलग बात है. बट आप जो आप x लिख रहे हो उसकी जगह आप a भी डालोगे तो भी आपका प्रपोजिशन तो बन जाएगा. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि देन द प्रपोजिशन गॉट बाय रिप्लेसिंग x बाय a. आप x की जगह a भी लिख सकते हो क्योंकि a भी उस यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स से ही आया है, तो वो बन जाएगा p ऑफ a. ठीक है. Thus, if the set of all integers is the universe for x in the open statement p of x, x plus 3 is 6, then p of 2 is the preposition. फिर से देखिए. Thus, if the set of all integers in the universe for x in the open statement p of x,
अगर x है तो x प्लस थ्री इज 6, देन p ऑफ 2 क्या बना, 2 प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 6, p ऑफ 5 क्या बना, 5 प्लस थ्री इज 6। और फिर हमें पता चलेगा कि ये प्रेपोजिशन ट्रू है फॉल्स है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वो प्रेपोजिशन वो होते हैं जो ट्रू भी हो सकते हैं फॉल्स भी हो सकते हैं, कुछ होना चाहिए, उनकी ट्रुथ वैल्यू होनी चाहिए। वी नोट दैट दिस preposition इज false. Similarly, if q of x is the open statement, अगर q of x एक ओपन स्टेटमेंट है सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 10 और कैपिटल U आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, तो p ऑफ रूट टू सेटिस्फाई कर रहा है। रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 इज सेटिस्फाइंग, सो इट इज ट्रू। अब इट इज टू बी emphasized that an open statement p of x becomes a preposition only when x is replaced by a chosen element of the discourse of the universe. The truthness or falsity of the preposition depends on that value. अगर आपने a ली, a ने सेटिस्फाई किया नहीं किया वो तो अलग बात है, ठीक है। लाइक कंपाउंड प्रेपोजिशन, कंपाउंड ओपन स्टेटमेंट्स भी बनेंगे। अब जैसे कंपाउंड प्रेपोजिशंस होते हैं, कंपाउंड ओपन स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। दस नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स इज द निकेशन ऑफ एन ओपन स्टेटमेंट पी ऑफ एक्स। उसका नॉट भी ले सकते हो, उसका और भी ले सकते हो, उसका एंड भी ले सकते हो ओपन स्टेटमेंट का। ऑल्सो फॉर द ओपन स्टेटमेंट पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स यू कैन राइट पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, एक कंजंक्शन का फॉर्म, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स डिसजंक्शन के फॉर्म पे, P of x implies Q of x conditional statement, P of x double implication Q of x biconditional statement. For a given universe and for a given element of the universe, the truth values of compound open statements are determined according to the same rules. Rules are same. ठीक है, तो जैसे प्रपोजिशंस के लिए करते थे या इसके लिए फॉर अ गिवन यूनिवर्स फॉर अ गिवन एलिमेंट के लिए आपने किया जो सिंपल स्टेटमेंट्स थे, आप कंपाउंड ओपन स्टेटमेंट्स के लिए भी आपको वही करना है। अब सपोज द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इस वक्त आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपने z लिया हुआ है, कैपिटल Z स्टैंड्स फॉर ऑल इंटीजर्स। अगर उस z के पावर में स्मॉल सा प्लस लिख दे तो वो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, बट व्हेन यू जस्ट राइट z इट इज जस्ट ऑल नंबर्स, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कंसिडर द फॉलोइंग ओपन स्टेटमेंट्स। अब पी ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, क्यू ऑफ एक्स क्या लिखा है एक्स प्लस 1 इज ऑड, आर ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 0। तीन स्टेटमेंट्स है आपके पास, पी ऑफ एक्स एक्स इज लेस देन 3, क्यू ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 इज ऑड एंड आर ऑफ एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब राइट डाउन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको बताना है कि पी ऑफ 2 के लिए क्या ये सही है। पी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, येस इट इज ट्रू। P ऑफ -1 एंड Q1 क्या होगा, P ऑफ -1 इज लेस देन 3, हाँ, और Q ऑफ 1 क्या है, 1 प्लस 1 इज ऑड, नो, Q ऑफ 1 फॉल्स हो रहा है और दोनों के बीच में एंड का साइन है। देखो P ऑफ -1 तो ट्रू निकला, Q ऑफ 1 फॉल्स निकला, क्योंकि Q फॉल्स निकला भाई, वो भी देख लो, ये इसलिए फॉल्स निकला क्योंकि 1 प्लस 1 उसने कहा ऑड होना चाहिए, तो उस हिसाब से P ऑफ -1 ट्रू है, Q ऑफ 1 फॉल्स है, और दोनों के बीच में एंड का साइन है, क्योंकि एंड का साइन है इसीलिए आप बोलोगे कि वो टोटली फॉल्स है, अगर और का साइन होता तो ट्रू हो जाता। नेक्स्ट नॉट Q ऑफ 4 क्या होगा, नॉट Q ऑफ 4 यानी Q ऑफ 4 क्या होता है, 4 प्लस 1 इज ऑड, बट उसका नॉट यानी कि क्या हो जाएगा, उसका नॉट लेना है, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट, हाँ, नॉट ऑफ Q ऑफ 4, तो Q ऑफ 4 इज ऑड, 4 प्लस 1 इज 5 विच इज ट्रू, बट नॉट ऑफ Q ऑफ 4 इज फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉट P ऑफ 3 और R ऑफ 0। P ऑफ 3 क्या है आपका, P ऑफ 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है, बट उसका नॉट लेना है आपको, तो वो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू आएगा, ट्रू का नॉट कर दो, ठीक है। P अगर से अभी P ऑफ 3 निकालो, P ऑफ 3 क्या हो रही है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, बट अब नॉट कर देंगे उसकी ट्रुथ वैल्यू को तो वो फॉल्स हो जाएगी। और R ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, वो फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स है, तो फॉल्स फॉल्स और के साइन साथ भी हो बट फॉल्स 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 ही होता है, ठीक है। P ऑफ 0 इम्प्लाइज Q ऑफ 0, P ऑफ 0 इम्प्लाइज Q ऑफ 0 को पहले तो ऐसे लिख दो कि नॉट P और Q, ठीक है ना, तो नॉट P और Q क्या हो जाएगा आपका या ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, P इम्प्लाइज Q कब ट्रू होता है,
P implies Q तब ट्रू होता है जब पहला वाला ट्रू ना हो, बाकी सारा अगर पहला वाला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो वो फॉल्स होता है इम्प्लीकेशन में। बाकी सब केस में चाहे फॉल्स फॉल्स के लिए भी ट्रू है, ट्रू ट्रू के लिए तो ट्रू ही है, और फॉल्स ट्रू के लिए भी ट्रू होता है, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं होने चाहिए। चलो ये देखते हैं, ये ट्रू फॉल्स तो नहीं है। P ऑफ 0 क्या हुआ, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये ट्रू हो गया। Q ऑफ 0 क्या हुआ, Q ऑफ 0 0 प्लस 1 1 होता है विच इज़ ऑड, यानी ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू ट्रू के लिए वो ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स नहीं होना चाहिए था। तो आप फाइनली आप बोलोगे कि जो ये फिफ्थ वाला स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। ओके, नेक्स्ट डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का क्या फंडा है? डबल इम्प्लीकेशन सिमिलर के लिए ट्रू होता है, डिसिमिलर के लिए फॉल्स होता है। ठीक है, तो सिमिलर होना चाहिए बस, डिसिमिलर नहीं होना चाहिए। अब P ऑफ 1 क्या है? P ऑफ 1 ट्रू है। Q ऑफ 2 2 प्लस 1 इज़ 3, बट उसका ऑड कर देंगे तो फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ गया। ट्रू फॉल्स हमें नहीं चलता है क्योंकि हमें डिसिमिलर नहीं चाहिए, तो सिक्स्थ वाला आपका ओवरऑल फॉल्स हो गया। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ यू प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स यू प्लीज़ प्रैक्टिस। अब हम क्वांटिफायर्स देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। पहले बोला कि ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल्स, फॉर ज़रूरी नहीं प्रपोजिशन ट्रू ही हो। ठीक है, तो आप सिर्फ रीड करो कि फॉर एवरी इंटीजर एक्स स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, कुछ डिटर्मिनेंट्स ज़ीरो होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हु स्क्वायर इज इक्वल टू इट्स हाफ। ठीक है, अब ये क्वांटिफायर्स है जो कि कुछ क्वांटिफायर्स नहीं है, ये कुछ प्रपोजिशंस है। अब आप देखिए, इन दीज प्रपोजिशंस द वर्ड ऑल, एवरी, सम, देयर एग्जिस्ट आर एसोसिएटेड फॉर द क्वांटिटी, वो क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं, है ना। जब हम बोल रहे हैं द वर्ड जैसे कि ऑल, एवरी, सम, देयर एग्जिस्ट, इनका मतलब कुछ क्वांटिटी है। जैसे कि प्रपोजिशन है 1 4, ठीक है, 1 का 4, ये जो प्रपोजिशन है। ओके, द प्रपोजिशन 1 4 कंसिस्टेड अबव मे बी री रिटन इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म एज एक्सप्लेन बिलो। फोर्थ वाला, ठीक है, 1 to 4 सॉरी। लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्क्वेयर्स। अब एस को हमने मान लिया कि एस है सारे स्क्वेयर्स। देन द प्रपोजिशन 1 में बी रिटन एज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस पी ऑफ एक्स, वेयर द सिंबल, ये जो लिखा हुआ है ना सिंबल ये वाला, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं। एंड पी ऑफ एक्स तो आपको पता है ओपन स्टेटमेंट के लिए हमने पहले ही पढ़ा कि हम किसी भी स्टेटमेंट को पी ऑफ एक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने लिखा कि फॉर ऑल एक्स सच दैट वो क्या हो, एस, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस, वो स्क्वायर है, अगर एक्स एक स्क्वायर है तो वो पी ऑफ एक्स है, मतलब कि वो एक रेक्टेंगल है। इसे समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ कि किसी भी ओपन स्टेटमेंट को हम कैसे लिख रहे थे, जैसे एक्स इज़ अ रेक्टेंगल तो उसको पी ऑफ एक्स लिख रहे थे हम कि एक्स एक रेक्टेंगल है। अब अगर सारे एक्स जो स्क्वायर है वो पी ऑफ एक्स है, यही हुआ ना, ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल, सारे एक्स जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, आई विल रिपीट इट अगेन सो दैट यू डू नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन। ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल, ये एक ओपन स्टेटमेंट है क्योंकि किसी डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्क्वायर आया है ये डिसाइड होगा कि वो रेक्टेंगल है या नहीं है। तो एक्स इज़ अ रेक्टेंगल अगर मैं बोलती हूँ तो ये एक ओपन स्टेटमेंट है जिसको हमने पहले ही सीखा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स वो डिसाइड होगा कि वो रेक्टेंगल है या नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा एक सिंबल होता है फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है। अकॉर्डिंग टू द सिंबल फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, फॉर ऑल एक्स if your x belongs to S, that is if it's a square, it's a rectangle। ठीक है, तो सिमिलरली अब सेकेंड प्रपोजिशन को क्या लिखेंगे, फॉर एवरी इंटीजर एक्स एक्स स्क्वायर इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर। तो आपका ओपन स्टेटमेंट क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर, वो आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर दो, जैसे कि आपने यहाँ पे डिनोट किया है उसे एक्स स्क्वायर इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर इज़ बीइंग represented by q of x। ठीक है,
क्यू ऑफ एक्स लिया इन्होंने, तो क्यू ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब सभी के लिए बोल रहा है फॉर एवरी, एंड अगेन अगेन आप लिखोगे फॉर ऑल एक्स belonging to, for every integer, for all x belonging to z, q of x, ठीक है। तो आपने इसको लिखना है ऐसे सिम्बॉलिकली, फॉर ऑल x belonging to z q of x। देखा, अगर x एक इंटीजर है, z का मतलब मैंने आपको बताया z इज इंटीजर, z प्लस पॉजिटिव इंटीजर, कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स, कुछ ऐसे ये वेरिएबल्स है जो मतलब फिक्स होते हैं, इनके लिए यूज़ होते हैं, इन्हीं सेट्स के लिए, ठीक है। तो अगेन फॉर ऑल एक्स, अगर वो इंटीजर है तो वो क्यू ऑफ एक्स है, और क्यू ऑफ एक्स का स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट क्या है कि एक्स स्क्वायर इज एन इंटीजर। थर्ड वाला हम खुद से बनाते हैं, तो वो ये होगा कि P हो गया, Q हो गया, अभी चलो कोई और वेरिएबल R ले लेते हैं, ठीक है। तो सम डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो x अगर एक डिटर्मिनेंट है एन इक्वल्स टू 0, तो ये आप लिखोगे एज R ऑफ x, ठीक है। अब सम, सबके लिए तो बोला नहीं, तो सम यानी कुछ को ये देयर एग्जिस्ट, ठीक है। ये फॉर ऑल है और ये देयर एग्जिस्ट है, उल्टा ई विथ अ लाइन, सीधा वी विथ अ लाइन, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो आई विल राइट देयर एग्जिस्ट सम एक्स belonging to determinant r of x, ठीक है। यानी कुछ ऐसे x है जो अगर डिटर्मिनेंट है तो वो 0 होंगे, कुछ ऐसे x है अगर वो डिटर्मिनेंट है तो वो 0 होंगे, और ये 0 होंगे, ये स्टेटमेंट आपने ओपन स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। अब इसके बाद सिमिलरली द preposition for may be symbolically written as there exists a real number whose square is equal to itself. So there exists a real number, there exists an x such that it belongs to real number, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, such that उसका स्क्वायर जो भी है, बाकी का स्टेटमेंट आपने क्यू ऑफ एक्स फॉर्म में लिखना है। आप कोई भी ओपन स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर में ही बताया, ठीक है। तो वे द सिंबल द रिवर्स ई नाउ डिनोट्स द फ्रेज देयर एग्जिस्ट, आर डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड क्यू ऑफ एक्स स्टैंड्स फॉर एन ओपन स्टेटमेंट। क्या है वो ओपन स्टेटमेंट? कि एक्स इज अ रियल नंबर हु स्क्वायर इज इक्वल टू इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि द सिंबल देयर एग्जिस्ट हैज़ बीन यूज टू डिनोट द फ्रेजेस फॉर सम एंड देयर एग्जिस्ट। इन लॉजिक दीज टू फ्रेजेस आर इक्विवेलेंट टू वन अनदर, दे आर ऑल्सो टेकन इक्विवेलेंट टू द फ्रेज फॉर एट लीस्ट, फॉर सम, देयर एग्जिस्ट। इसके लिए ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऐसा होगा। एंड अ प्रपोजिशन इन्वॉल्विंग द यूनिवर्स, पूरा की पूरा यूनिवर्स को अगर वो क्वांटिफाई कर रहा है, यानी फॉर ऑल को क्वांटिफाई कर रहा है, तो उसके लिए ये वाला क्वांटिफायर यूज़ होगा। स्टेटमेंट्स जैसे कि फॉर ऑल, ये टेल्स द यूनिवर्स, होल यूनिवर्स इज इंडिकेटेड, एंड इसे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहा जाता है। द वेरिएबल प्रेजेंट इन एन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ बाउंड वेरिएबल, इट इज़ बाउंड बाय अ क्वांटिफायर। और ये जो वेरिएबल हम अंदर यूज़ कर रहे हैं, इसे बाउंड वेरिएबल कहते हैं। अगेन दिस इज समथिंग यू मस्ट नो कि एक प्रेपोजिशन जिसमें यूनिवर्सल या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, वो यूनिवर्स को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहा जाता है, चाहे ये हो चाहे ये हो। इनमें एग्जिस्टेंशियल या फॉर ऑल के क्वांटिफायर्स लगे हुए हैं, क्वांटिटी डिनोट करने वाले, तो इसीलिए उन्हें क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स कहा जाता है। दस एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट एक प्रेपोजिशन होता है किसी भी फॉर्म का, जैसे फॉर ऑल या देयर एग्जिस्ट, जहाँ पे जो स्टेटमेंट्स इंक्लूड होती हैं वो ओपन स्टेटमेंट्स होती है। जो बीच में आप ये डी देख रहे हो या एस देख रहे हो, ये क्या है? ये उनके यूनिवर्स है, जो बताते हैं कि ये यूनिवर्स, व्हेन द कॉन्टेक्स्ट टेल्स दैट the universe is not explicitly indicated and a quantified statement is always written in this form. The variable present in that quantified statement is called a bound variable, ठीक है। अब यहाँ तक चीज़ें अगर क्लियर है तो कुछ और देख लेते हैं कि देयर आर स्टेटमेंट वेयर द प्रेजेंस ऑफ अ क्वांटिफायर इज अंडरस्टूड। For example, the statement, if a triangle is equilateral then it is
ठीक है, एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, बिकॉज हर ट्राइंगल जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो एक आइसोलीस ट्राइंगल है। तो पहले तो ये P इम्प्लाइज Q फॉर्म में है। ठीक है, फॉर एवरी ट्राइंगल यानी फॉर ऑल एक्स, कैसे लिखेंगे? फॉर ऑल एक्स, अगर फॉर ऑल एक्स अगर वो एक ट्राइंगल है तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो फिर ई ऑफ एक्स लिख दो आप, स्मॉल ई लिखना क्योंकि ये वेरिएबल है। हाँ, ई ऑफ एक्स इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाई क्या हो रहा है कि वो देन इट इज आइसोलीस, इम्प्लाइज पी ऑफ एक्स। मैंने कुछ भी लिख दिया मतलब, ठीक है। आइसोलीस के लिए आई वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, इक्विलैटरल के लिए ई यूज़ कर लेते हैं। तो फिर आप देखिए अब तो बराबर बनेगा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इफ़ इट इज़ अ ट्राइंगल, तो आप क्या बोलोगे कि वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जो कि इम्प्लाई करता है कि वो एक आइसोलीस भी होगा। ये स्टेटमेंट बन गया कि फॉर ऑल एक्स अगर वो एक ट्राइंगल है एंड वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, फॉर एवरी ट्राइंगल अगर वो इक्विलैटरल है तो वो आइसोलीस भी होगा। सिमिलरली व्हेन वी से दैट 9 इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, वी मीन दैट 9 इज द स्क्वायर ऑफ सम इंटीजर। और इक्विवेलेंटली तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर, इंटीजर के लिए मैंने कहा z लेना है तो वही लेंगे, देयर एग्जिस्ट एन एक्स बिलोंगिंग टू z, और फिर क्या है, हु स्क्वायर इज 9, तो वो तो एक आपका ओपन स्टेटमेंट हो गया, आप लिख दो P ऑफ एक्स, खत्म। तो ये तरीके हैं इनको रिप्रेजेंट करने के। अब एग्जाम्पल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड 1 or 2 एग्जाम्पल्स I will take and rest are to be taken as homework only। ठीक है, पहला यूनिवर्स ऑफ ऑल इंटीजर्स P ऑफ एक्स क्या है, x ग्रेटर देन 0, x इज इवन, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज डिविजिबल बाय 3, x इज डिविजिबल बाय 7। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट्स है आपके पास, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में आपको लिखना है। एटलीस्ट वन इंटीजर इज इवन, एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, there exists a that is even, and so on. So okay, for now I will discuss the same examples in the in the next video. We will discuss all these examples again. So for now I end this video, but if you can, please practice these examples as much as you can. Thank you so much.